Okay, in this lecture we are going to talk about the detection of virus, or what are the effects that you have to observe after cultivating a certain type of virus. So regardless of the method, whatever you have been used, either cell culture lines or direct inhibition into a host, just like chick's embryo, whatever the method has been used, the virus, once it has been introduced into a whole host organism or an embryo or a tissue culture, a sample can be prepared from the infected host embryo or cell line for further analysis, and that analysis can be taken place directly under a microscope, which may be bright field electron microscope or fluorescent microscope. The effects you are going to observe for viral abnormalities will be cytopathic effects. Cytopathic effects are actually the distinct observable abnormalities, cell abnormalities, which happened due to viral infection. A cytopathic effect, or in short we can say it as CPEs, these include loss of adherence of the cell to the container, changes in the cell shape from flat to round, shrinkage of the nucleus, vacuoles in the cytoplasm, fusion of the cytoplasmic membrane, and formation of multinucleated syncytia, inclusion bodies in the nucleus or cytoplasm, and complete cell lysis. One of the cytopathic effects you can see from here, this is from herpes virus. As you can see from these arrows, these are the cytoplasmic standings, and these are the inclusion bodies in the normal cell. So you can see these long strands of cytoplasm that has been due to the viral inoculation. Another one is the adenovirus. It causes what? Cell enlargement, rounding, distinctive grape-like structures, as you can see here easily. So these are actually the effects. Moreover, there are more effects as well. For example, adherence and all that, but that vary from virus to virus. These are from herpes virus, and this is from adenovirus. So these are actually the abnormalities you are looking for certain viral infections. Further pathological changes include viral disruption of the host genome and altering the normal cells into the transformed cells. That happens in carcinomas and sarcomas. The type of severity of CPE depends on the type of the virus involved, which type of virus is causing which type of infection. So साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स या डिटेक्शन ऑफ यानी आप जब वायरस को कल्टीवेट कर लेते हैं तो फिर आप उसमें क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं आफ्टर कल्टीवेशन, यानी आप उसकी ग्रोथ के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, उनमें आपके पास यानी उन इफ़ेक्ट्स में या उनमें एबनॉर्मलिटीज़ में आते हैं साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स। साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स जो है वो ख़ास सेल्स की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करता है, जो आप माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर या फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर या ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। CPEs में आपके पास जो मोस्टली ऑब्जर्वेबल कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं कि सेल्स की क्योंकि एडहेरेंस होती है सरफेस के साथ, ख़ास करके प्लास्टिक या इस तरह की चीज़ों पे सेल्स जो हैं वो तभी ग्रो करते हैं जब वो अडेयर करते हैं। तो अगर उनकी एडहेरेंस यानी उनका चिपकना किसी सरफेस से ख़त्म हो जाए, वो चीज़ भी आपको डिस्टिंक्ट एबनॉर्मलिटी लग सकती है, या सेल का शेप चेंज हो जाए, फ्लैट था तो राउंड हो जाए या और कोई शेप इख्तियार कर ले, न्यूक्लियस श्रिंक हो जाए, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एक्स्ट्रा वैक्यूल्स नज़र आना शुरू हो जाए जो कि एंडोसाइटोसिस वगैरह के थ्रू हो सकते हैं, या फिर ऐसे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स जो वो फ्यूज़ कर जाएं आपस में,
या आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो एक साथ आ जाए, जिसको हम सिंसेशिया की कंडीशन कहते हैं। इसी तरह से कोई और बॉडीज़ जो हैं वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आपको नज़र आ जाए, या आपको सेल कम्प्लीटली लाइस होता हुआ दिख जाए। ये सारी चीज़ें आपके पास साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स में होती हैं, और ये डिपेंड करती हैं किस तरह का वायरस, कौन उसकी सीवियरिटी क्या है, या वो किस किस्म की जो है आपके पास एबनॉर्मलिटी कॉज कर रहा है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में दूसरी में ये हो सकता है कि होस्ट जीनोम को ही ऑल्टर कर उसमें इंटरफेरेंस हो जाए वायरस की, और वो नॉर्मल कंडीशंस जो है सेल की उनको टेक ओवर कर ले और उनको ऑल्टर कर दे, जो कि किस में होता है, ट्यूमरस सेल्स में होता है या सार्कोमास में होता है। एंड देन हाउ यू कैन detect the virus in a certain sample or in pathology। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको जो है ये कंफर्म करना है कि विच टाइप ऑफ वायरस इज़ प्रेजेंट in the serum of this patient, how will you do that? There are certain assays which are helpful in detecting these types of viruses, and that includes, the first one is hemagglutination assay, the second one is nucleic acid amplification test, and the third one enzyme immunoassay. Actually enzyme immunoassay is being done prior to nucleic acid amplification test. We'll take one of them one by one. तो जब आपके पास वायरस किसी की सेरम में, किसी पेशेंट के सेरम में आपको डिटेक्ट करना है, तो वो कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इन मेथड्स के थ्रू आप वायरस की मौजूदगी को कंफर्म कर सकते हैं, आइदर दे आर प्रेजेंट इन द पेशेंट्स ब्लड और नॉट। सो द फर्स्ट वन इज़ hemagglutination assays. As you know that viruses are capable, some of the viruses, they are capable of aggregating red blood cells, यानी red blood cells जो normally आपकी blood में होते हैं, उनको उसमें अगर वायरस पार्टिकल मौजूद हो, वायरल प्रोटीन हो, तो वो क्या करता है, उनके स्पाइक्स जो होती हैं उनके ऊपर, as you can see here, these are the spikes on their envelope, they actually have affinity for red blood cells. इन स्पाइक्स की एफिनिटी होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की आपको जब मैं पढ़ाऊँगी तब आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आएगी, लेकिन ये क्या करते हैं, इन स्पाइक्स के अंदर एफिनिटी होती है टू एडहेयर टू द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। सो व्हाट दे डू कि ये रेड ब्लड सेल्स को आपस में एडहेयर करते हैं वायरल पार्टिकल्स के साथ, और ये एग्रीगेट्स बना देते हैं, यानी एक तरह की क्लम्पिंग हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की, विच इज़ नोन एज एग्लूटिनेशन। तो hemagglutination is a serological assay which is used to detect the presence or absence of certain types of viruses in the patient's serum. What is serum? You better, I think you people will know, but serum is the pale yellow colored liquid fraction of the blood plasma from which clotting factors have been removed. So serum can be used to detect in an assay, in a direct assay, which is known as hemagglutination assay. And hemagglutination is actually the clumping together of erythrocytes, which are red blood cells, and many viruses produce surface proteins or spikes called hemagglutinins that can bind to the receptors on the membrane of erythrocytes and cause them the red blood cells to agglutinate. Hemagglutination is observable without using a microscope, but this method, one limitation which occurs in hemagglutination, this method always do not differentiate between infectious and non-infectious viral particles, since either it is infectious or non-infectious. If there are spikes on the viral surface, it is able to agglutinate red blood cells. So you cannot differentiate from pathogenic and non-pathogenic viruses. So आपके पास होता क्या है कि जब when you place the patient's serum, then if there is no reaction, then after some time these red blood cells are going to settle at the bottom and no reaction will take place. But if
clumping is there, so you will see whole of the serum will turn red like this. So to identify a specific pathogenic virus using hemagglutination, we must use an indirect method. There is also an indirect method by which you can detect certain type of virus in a patient's serum. You know that proteins which known as antibodies, here you can see antibodies in this type of assay. This is actually hemagglutination inhibition assay. So what we do here, the antibodies which are being generated by patient's immune system to fight a specific virus, they can be used to bind to components which are known as hemagglutinins that are uniquely associated with the specific types of viruses. So in this type of test, you will use pre-formed antibodies from another patient for a particular type of virus which has specific agglutinins for this kind of antibodies. So what we do when we add these antibodies in the patient serum, if the virus is present in the patient serum, these antibodies are going to bind with the agglutinins present on the envelope of the virus. And so what happened, there will be no hemagglutination observed, and that inhibition is actually the positive test for the certain type of virus, because you have added that specific antibodies in the patient serum. So this will not aggregate, or this will not agglutinate red blood cells, and this inhibition is actually telling us that the certain type of virus is present in the patient serum. So this is you can say more sensitive than normal hemagglutination, as in this way you can detect a specific type of virus. पैथोजेंस होंगे तो वो पता चल जाएगा। यानी एक तो आपके पास डायरेक्ट अप्रोच थी जिसमें आप वायरस और पेशेंट का सीरम आप ऐड करते हैं, तो उसमें अगर वायरस प्रेजेंट होता है तो वो क्या कॉज कर देता है, हीमोग्लूटिनेशन। इसी से आप मज़ीद मॉडिफाइड फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसे, जिसमें आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं जो पैथोजेंस हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट सीरम के साथ हम एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो कि एक हेल्दी पर्सन से ली हुई होती हैं, और हर वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होती हैं। तो जिस वायरस का भी आपको शुबा होता है उसकी एंटीबॉडीज़ आप उस सीरम में पेशेंट के ऐड करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ दे टेंड टू अडेयर टू दैट वायरस, उनके ग्लूटिनेंट्स को ये बाइंड कर देता है। तो नाउ द वायरस इज़ नो लॉन्गर एबल टू एग्लूटिनेट दिस RBCs। जब वो उनके साथ एंटीबॉडीज़ अडेयर हो जाती हैं, तो अब ये वायरस जो है ये RBCs को अडेयर नहीं कर सकता, उनको एग्लूटिनेट नहीं कर सकता, और एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास कोई हीमोग्लूटिनेशन नहीं होती, इसकी इनहिबिशन हो जाती है। और ये इनहिबिशन आपको ये बताता है कि दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस इज़ प्रेजेंट इन द पेशेंट सेरम, क्योंकि आपने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ इसमें ऐड की थी, एंड दिस इज़ नोन एज हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन एसे। द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ ELISA or enzyme immunoassay. Enzyme immunoassays rely on the ability of antibodies to detect and attach to specific biomolecules called antigens. The detecting antibody attaches to the target antigen with a high degree of specificity in what might be a complex mixture of biomolecules. In this type of assay, we also include colorless enzymes that are attached to the detecting antibodies. That's why they are known as enzyme ELISA, that is enzyme that's why they are known as
So another one is ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay. और उसकी फर्दर टाइप्स हैं, इसमें आपके पास डायरेक्ट ऐसे, इनडायरेक्ट ऐसे और कैप्चर ऐसे, कैप्चर सैंडविच ऐसे के अलावा इसमें द थिंग्स यू आर गोइंग टू ऐड हियर इज़ दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजेंस जिनको फॉरेन बॉडीज़ या जिनको आप वायरल पार्टिकल्स कह लें, जो कि पेशेंट सीरम के अंदर मौजूद हो सकते हैं, दे टेंड टू एडहेयर टू द सर्फेस ऑफ द ट्रे plastic container in which they are placed, and then you will add this antibody which is enzyme linked. ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक एंजाइम लिंक्ड हुआ हुआ है, ये एक्चुअली इस एंटीबॉडी को टैग कर देता है. व्हेन दिस एंटीबॉडी विल adhere to the surface of the antigen और वायरस के एनवेलप या उसकी प्रोटीन के साथ जाके जब ये अटैच हो जाएगा, देन विल ऐड अनदर सबस्ट्रेट. दैट सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट के ऐड करने से क्या होगा कि ये एंजाइम जो कि कलरलेस है, उस सबस्ट्रेट के ऐड करने से ये रिएक्शन करेगा और कलर में चेंज हो जाएगा. जैसे ये आपको एक प्लेट नज़र आ रही है, ये 96 वेल ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर हम सैम्पल को डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के साथ डालते जाते हैं और उसके बाद हम इसमें इस तरह की एंटीबॉडीज़ जो एंजाइम लिंक्ड होती हैं उनको एंटर करते हैं. फिर देन वी एंटर सबस्ट्रेट इन द एंड, और अगर उसमें यानी ये एंटीबॉडी अगर एंटीजन के साथ एडहेयर हुआ ही होगा तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नॉट. सो हियर यू कैन सी some of the wells are colorless and some are colored. In this way you can physically see the reaction that is taking place inside the wells. तो इसकी एक डिटेल, बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा. इधर आपको सिर्फ समझाने के मकसद ये है कि these are the methods by which you can detect viruses. तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम लिंक्ड आप एसेस कर रहे होते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ के साथ आप एंजाइम को लिंक करते हैं और वो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के ऐड होने पर आपको कलर देगा या नहीं देगा. इसमें वायरस की मौजूदगी हमें उस वक्त पता चलेगी अगर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कलर्ड बना देगा, क्योंकि ये बाइंड हुआ होगा इससे, तो ही ये वो रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकेगा, अदरवाइज नॉट. इस डायरेक्ट ऐसे में आप सिर्फ वायरस की मौजूदगी को कंफर्म कर सकते हैं या बता सकते हैं कि वायरस इसमें मौजूद है या नहीं, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है, कितना इसमें डैमेज कॉज कर सकता है. ये इसकी एक फ्लॉ ये भी है कि आपको हर दफ़ा ये एंजाइम जो है हर सैम्पल के लिए अलहदा बनाना पड़ता है. तो इसके लिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और थोड़ा सा इसकी एक फ्लॉ है. दूसरी बात ये कि ये जब एंजाइम लिंक्ड होते हैं ये एंटीबॉडीज़, तो ये उस तरह से कैप्चर नहीं करते एंटीजन को जितना ये फ्री विदाउट एंजाइम जो है ये कैप्चर करते हैं. इससे क्या हो सकता है कि आपको एक फॉल्स कलर भी मिल सकता है, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकती है. तो इस चीज़ को या इस फ्लॉ को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इस इनडायरेक्ट एसेज यूज़ किए गए. इनडायरेक्ट ऐसे में क्या होता है कि एंटीजन के साथ आप पहले प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं. ये प्राइमरी एंटीबॉडी उस सर्टन एंटीजन को जाकर बाइंड कर देती है और फिर ये इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए आप एक सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करते हैं जिसके साथ एंजाइम लिंक्ड होता है. और फिर वो सेकेंडरी एंटीबॉडी जब इस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा तो फिर हम यही वाला डायरेक्ट ऐसे वाला प्रोसीजर अपनाएंगे और फिर वही सबस्ट्रेट के ऐड करने के बाद ये कलर्ड प्रोडक्ट देगा आपको. दिस इज़ नोन एज इनडायरेक्ट ऐसे. अनदर वन इज़ कैप्चर और सैंडविच ऐसे. दिस इज़ इवन मोर सेंसिटिव दैन इनडायरेक्ट ऐसे. और इसमें क्या होता है कि एंटीजन्स जो होती हैं, यानी जो वायरल सरफेस है, जो उसकी प्रोटीन्स है, इसकी डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होती हैं.
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बाइंडिंग साइट हो, डिफरेंट बाइंडिंग साइट होती है। तो उसमें आप दो तरह की एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं। एक एंटीबॉडी जो एक स्पेसिफिक एंटीजन को, फॉर सपोज अगर हम इसको ट्रायंगुलर कह रहे हैं तो ये अपर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल को ये वाला एंटीबॉडी कैप्चर कर रहा है, और ये जो लोअर पार्ट है इसको ये कैप्चर एंटीबॉडी जो है वो यहाँ से बाइंड कर रहा है। तो क्योंकि ये स्पेसिफिक होंगे डिफरेंट वायरस के लिए, तो ये उनकी डिफरेंट सरफेसेस को कैप्चर कर लेंगे। इस सैंडविच को फिर आप एक सेकेंडरी एंटीबॉडी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, वो जो कि एंजाइम लिंक्ड है। इन सब में आप देख सकते हैं कि ये एंजाइम लिंक्ड एसेस कहलाते हैं इसीलिए क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ जो डिटेक्ट करती हैं, यानी जो कलर प्रोड्यूस करवाएंगी, वो एंजाइम लिंक्ड होती हैं, वो टैग हो जाती हैं एक्चुअली। उसी की वजह से आपको सैम्पल में कलर नज़र आता है। So first one is the direct assay, which is less sensitive than indirect assay. Then you have indirect assay, and then the third one, the capture sandwich assay, is even more sensitive than indirect assays. इसके बाद आपके पास the third one, nucleic acid amplification test or NAT, जिसको आप in short कहें, they are used in molecular biology to detect unique nucleic acid sequences of viruses in patient sample. इसमें जो आप चेक करते हैं ये एक और मोर ऑथेंटिक, फॉर एग्जांपल अगर एलाइसा से आपको कंफर्म हो जाता है कि सर्टन टाइप ऑफ वायरस इज़ प्रेजेंट, अब उसकी क्वांटिफिकेशन कितनी मौजूद है या उसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए देन यू विल गो फॉर PCR. PCR इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. It is actually a nucleic acid amplification test which is used to detect the presence of viral DNA in a patient tissue or body fluid sample. It is a technique that amplifies का मतलब होता है यानी उसको बढ़ा देना या उसकी सिंथेसाइज करना काफ़ी सारी कॉपीज़ वायरल DNA की। इवन अगर कोई स्मॉलर सेगमेंट मौजूद है वायरल DNA का, तो बाय दिस मेथड वी कैन आइडेंटिफाई दैट molecule as well. So that viral DNA segment of interest जो भी हमें चाहिए होता है, उससे हम PCR टेक्निक से that short nucleotide sequence जिसको हम प्राइमर कह रहे हैं, that it will bind to specific sequences of viral DNA and that will actually help us to identify certain type of virus. यानी कहीं ऐसा होता है कि पेशेंट सीरम में वायरल सेगमेंट या वायरल प्रोटीन जो है वो इतनी मकदार में नहीं होता जो आपको इन टेस्ट के थ्रू इजीली डिटेक्ट हो जाए। तो व्हाट वी डू, हम उसकी PCR करते हैं तो वो काफ़ी कॉपीज़ उस छोटे न्यूक्लियोटाइड की बना देता है और उसके बाद वो इतना बड़ा बन जाता है DNA मॉलिक्यूल के आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस या एब्सेंस सर्टेन टाइप ऑफ वायरस की। another enzyme nucleic acid amplification test is reverse transcriptase PCR. It is also a nucleic acid amplification test which is used to detect the presence of RNA viruses. DNA viruses तो आप डायरेक्टली PCR से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन RNA viruses में आपको पता है कि क्योंकि वो RNA बेस्ड होते हैं तो उनका आप जो सिस्टम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू चलता है। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पहले उस RNA मॉलिक्यूल से DNA बनाता है और फिर वो DNA से डबल स्ट्रैंड DNA बनाएंगे एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करते हैं और ये क्या करेगा, पहले एक कॉपी बनाएगा DNA की RNA के मॉलिक्यूल से और उसके बाद ये जो DNA की कॉपी बनेगी वो फिर PCR के थ्रू एम्पलीफाई होगी और फिर वो PCR और उसके थ्रू फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच टाइप ऑफ वायरस इज़ प्रेजेंट हियर। PCR और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR they are both used to detect and confirm the presence of viral nucleic acid in patients' specimens. So these are very sensitive, very reliable tests to detect the detection of viruses. इसकी भी पूरी एक सर्टन आपके पास मेथड है जो आप जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, यानी थर्मोसाइक्लर्स होते हैं जिसमें आप पहले डिफरेंट
टेम्परेचर्स पे इसको ट्रीट करते हैं सैम्पल को, और उसके बाद पहले डीएनए की स्ट्रैंड अलग होंगे, फिर आप प्राइमर अलग होगा, फिर उसके बाद उसकी एम्पलीफिकेशन होती है. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड यू विल लर्न इन डिटेल in your final year. So the only thing you need to understand here that this detection of viruses can be observed by any of these methods. ठीक है, इन मेथड्स के थ्रू आप वायरस को किसी भी पेशेंट सेरम में, स्पेसिमेन में, यूरिन सैंपल हो या ब्लड सैंपल हो, उसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एसेज. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के बारे में आपको यही मैंने बताया कि 2 टेक्निक्स हैं, पीसीआर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर. पीसीआर जो है वो डीएनए वायरसेस को डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकता है, और जो आरएनए वायरसेस होती हैं उसमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो पहले डीएनए की कॉपी बनाएं एंड देन इट कैन बी एम्प्लीफाइड likewise PCR. So these in this way detection of viruses can be completed. So further viral diseases, I'll do that in next lecture when we'll do online session on that, और इसके बाद फिर मैं आपका नया चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी. थैंक यू.